everyone. I am doing a new lecture series which is based on strength of material previous year questions. These questions already came in engineering services examination, and today's topic is stress and strain. मैंने already कुछ videos को complete किया हुआ है, so if you are new in this channel, please watch those videos as well. This is about myself. तो चलिए देखते हैं आज के questions. Okay, so question number 41. Okay, so this question number 41 till of engineering services. Okay, गेट के नंबर्स अलग होंगे और सिविल सर्विसेज के अलग होंगे. तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन के 41th क्वेश्चन है. देखिए ये ऑजरसन रीजन का क्वेश्चन है. ओके, सो दीज आर द ऑप्शंस. लेट्स रीड व्हाट इज सेइंग इन दिस क्वेश्चन. व्हेन अ कंपोजिट यूनिट कंसिस्ट ऑफ स्टील रॉड सराउंडेड by a cast iron tube is subjected to an axial load. Okay, so the assertion related to this statement is that the ratio of normal stresses induced in both the materials is equal to the ratio of Young's moduli of respective materials. Okay, the composite unit of these two materials is firmly fastened together at the end of ensure equal deformation in both the materials. Okay, so these are the two statements, assertion and reason. So let's see answer. Okay, see actually both is correct. Assertion is also correct and reason is also correct, and the reason is also the correct explanation of assertion. Okay, so the answer is A. Okay, please read this statement twice, then you will come to know why this is correct. Okay, the statement itself is self-explanatory. There is no needed, not needed to no much explanation is required. Okay, the statement itself is correct. Okay, the question number 2, question number 42. Okay, so this question you can see that it came in GATE 2004, 95, 97 and 98. See, actually if you watched my previous videos you will find this question. Okay, I have solved this question already. Okay, but still those who are new for this video I will explain you how to do that. Okay, but अगर आपने पीछे वाले वीडियोस देखे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा इसको कैसे सॉल्व करना है. ओके, सो उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से टाइम लेके किया है. इसको मैं थोड़ा फास्ट करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको समय दिया हुआ है. So I will not go, I will not take much time for explaining this question. So what they are asking, okay, area is given, for cross-sectional area is given. Okay, these sections is given. So they are asking, the total elongation in the in length of the rod due to loading. Okay, तो पूरे में पूछ रहा है कि कितना elongation होगा. Okay, तो इसमें देखिए 3 सेक्शन है. ये एक सेक्शन है हमारा. Okay, ये एक सेक्शन है. ओके, एंड दिस वन इज थर्ड सेक्शन. तो हमें क्या करना है, फोर्स तीनों में फोर्स निकालना है अलग अलग. उसके बाद फोर्स निकालने के बाद हमें जो तीनों के लिए अलग अलग इलॉन्गेशन निकालना है और उसको जोड़ देना है. ओके, देन यू विल गेट द आंसर. ओके, ठीक है. अब इसको करना कैसे, या दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट. तो सबको दिस द इलॉन्गेशन इज व्हाट, दैट इज PL/E. तो हमें फोर्स नहीं पता है. आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे फोर्स लगा हुआ है तो क्यों नहीं पता है. हमें पता नहीं, हमें नहीं पता. देखिए यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 250, यहाँ पे 200 है, 50 है. बट ऐसा तो नहीं है ना कि एक सेक्शन में यहाँ पे 100 हो रहा हो, यहाँ पे 250 होगा. नहीं, दोनों में सेम होना चाहिए. तो हमें करना क्या है, अब किसी एक साइड से स्टार्ट करो, चाहे इधर से या इधर से. तो चलिए इस साइड से स्टार्ट करते हैं. आप क्या करो, इस साइड में 100 लगाओ, इस साइड में 100 लगाओ. ओके, तो क्या होगा, जो टेंसाइल वाला ले लो, इस साइड में टेंसाइल है तो इधर वाला भी टेंसाइल हो, उसको एक अलग सेक्शन अलग से बना लो. तो क्या होगा, इधर हमारा 100 हो गया, इधर हमारा 100 हो गया. तो पहले वाले सेक्शन में हमारा 100 न्यूटन लग रहा है. अब देखिए, अब ये वाला सरफेस देखिए, यहाँ पे 250 कंप्रेसिव, 100 टेंसाइल, क्योंकि हमने यहाँ पे लगाया ना इसको, तो 250 से 100 घटा दीजिए तो क्या होगा, 150 कंप्रेसिव हो जाएगा. ओके, उसी तरीके से तो अगर इस साइड में कंप्रेसिव हो तो इधर हमारा इधर टेंसाइल होगा 150, इधर हमारा कंप्रेसिव होगा 150. ओके, तो क्या होगा, देखिए अभी ये एक्चुअली गलत है. ये दिस विल बी कंप्रेसिव, 150 कंप्रेसिव,
दोनों साइड में 150 कंप्रेसिव हो जाएगा, 150 कंप्रेसिव हो जाएगा। अब ये वाले सेक्शन को देखिए, यहाँ पे 150 कंप्रेसिव, 150 टेंसाइल। ओके, सो टोटल कितना होगा, 200 माइनस 150, 50। ओके, सो दिस विल बी 50। फाइन। तो इस तरीके से हमको फोर्सेस निकालना होता है। उसी तरीके से इस साइड भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे 50 कर लो, यहाँ पे 50 दोनों साइड लगा लो, उसके बाद 50-50 इस साइड में हो जाएगा, फिर आप देखोगे यहाँ पे 150 हो जाएगा और इस साइड में 100 ही आएगा। सो आप चाहे इस साइड से करो चाहे इस साइड से करो, यू विल गेट करेक्ट लोड। ओके, सो अब देखिए हमको यहाँ पे 100 टेंसाइल, 150 कंप्रेसिव, 50 कंप्रेसिव। तो अब हमें PL/A यूज करना है तीनों के लिए, डेल्टा L1, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 निकालना है, तीनों को जोड़ देना। कंप्रेसिव के लिए निगेटिव होगा, टेंसाइल के लिए पॉजिटिव होगा। ओके, सो द फोर्स होगा 100, लेंथ दिया, द लेंथ हम निकाल रहे हैं, इसके लिए 50 हो जाएगा, और इसमें से 1700 से 900 माइनस कर दो तो इसका लेंथ हमें मिल जाएगा। ओके, और ई की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे देखिए ई की वैल्यू दी हुई है। ओके, सो इफ यू सिंप्लीफाई दैट, रिमेंबर जो कंप्रेसिव है उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, उसको ऐड मत कर दीजिएगा आप। ये वाला पार्ट हमारा इन दोनों से सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो इफ यू सिंप्लीफाई यू विल गेट बी आंसर। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। ओके, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, द रिएक्शंस एट द रिजिड सपोर्ट ए एंड बी फॉर द बार लोडेड एज शोन इन फिगर रेस्पेक्टिवली। देखिए हमसे यह पूछ रहा है जो ए और बी पे हमारा रिएक्शन कितने होंगे, इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट पे रिएक्शंस क्या होंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है हमें, इसमें देखिए जितना, देखिए अगर हम इस पर 10 न्यूटन लगा रहे हैं, 10 किलो न्यूटन लगा रहे हैं, तो ये जितना कंप्रेस होगा वो इतना इलांगेट होगा, तो दोनों में एक्सटेंशन कितना होगा, बराबर होगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एट पॉइंट सी जो इलांगेशन है उसको इक्वेट करना है और फोर्स बैलेंस करना है, रिएक्शन दोनों पे बैलेंस कर देना है, देन विल गेट द आंसर। ओके, दो इक्वेशन मिलेगा, दोनों के लिए सॉल्व कर। ओके, तो देखिए इलांगेशन इन AC इज इक्वल टू लेंथ रिडक्शन इन CB, तो क्या होता है, PL/A होता है। ओके, तो यहाँ पे रिएक्शन मान लो RA है। ओके, और इस पे हमारा रिएक्शन RB है, तो आप यहाँ से इक्वेट कर लो। सो यू विल गेट वन रिलेशन फ्रॉम, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, तो RA इज इक्वल टू 2RB, एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा RA प्लस RB इज इक्वल टू 10। ओके, तो आप उसको सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट आंसर ए। ओके, सो देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज 2002 में आया, उसके बाद सिविल सर्विसेज 2003 में आया हुआ है। ओके, कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर सिविल सर्विसेज में तो प्रीलिम्स होता ही नहीं है, ये सब कहाँ से आ रहा है। ये एक्चुअली में पहले पुराने क्वेश्चन है, जब CSET नहीं हुआ करता था उससे पहले हमें एक ऑप्शनल चूज करना होता था। उस समय और जो लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो ऑप्शनल होता था प्रीलिम्स में, तो अब आता था। ठीक है, अभी नहीं आता ये, इट्स अ ओल्ड क्वेश्चन। Okay, so those who are preparing for civil service, they already know these things. Okay, so I should not required to explain every time. सर ये IAS वाले क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं, ऐसा वैसा। Okay, fine. Next question, which of the following is correct? When a nut is tightened by placing a washer below, the bolt will subjected to, okay, compressive only, tensile, shear, compression and ओके, तो इट्स आंसर विल बी बी, टेंसाइल होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस आर एसोसिएटेड विद द टाइटेनिंग ऑफ नट ऑन द बोल्ट। ओके, टेंसाइल स्ट्रेस ड्यू टू द स्ट्रेचिंग ऑफ बोल्ट, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ बोल्ट, क्रशिंग ऑफ स्ट्रेसेस इन थ्रेड, टॉर्सनल स्ट्रेस, shear stress due to frictional resistance between the nut and the bolt। ओके, देखिए इस टाइप वाले क्वेश्चन को अगर आपको एक पता है, आई मीन इधर सही वाला या गलत वाला, ओके, देखिए इसमें करेक्ट पूछ रहा है, कई बार नॉट करेक्ट भी पूछता है, तो आप उससे इलिमिनेट करने की कोशिश करो। ओके, सो लेट्स सी दिस। इसमें देखिए जो हमारा 2 है, ओके, द बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू बेंडिंग ऑफ बोल्ट, इससे पिछले वाला क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या बोला था, टेंसाइल होता है। ओके, तो ये नहीं है हमारा, दिस इज रॉन्ग। ओके, बेंडिंग स्ट्रेस ड्यू टू
बेंडिंग ऑफ बोल्ट। ओके, सो 2 अगर रॉन्ग है तो देखिए जहाँ जहाँ 2 होगा वो गलत हो जाएगा। ओके, दिस इज करेक्ट रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओके, सो आंसर डी विल बी करेक्ट। ओके, तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को आप कोशिश करिए एलिमिनेशन मेथड करने से। ओके, क्योंकि अगर आपको एक सही पता है एक गलत पता है तो यू कैन गेट द आंसर। कई बार ऐसा नहीं होता बट मोस्ट ऑफ टाइम हो जाता है। ओके, अगर एक से नहीं हो रहा है तो फिर 2 को देखो, फिर 3 को देखो, इस तरीके से करता है। इवन मैच लिस्ट में भी ऐसे ही करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मल इफेक्ट आ गया। इसमें क्या बोलता, दिस इज डायमेंशन गिवन फॉर द स्टील बार of free to expand is heated from 15 degree to 40 degree, what is subjected to what shall be developed। okay, देखिए अगर कुछ भी कंस्ट्रेंट नहीं, कुछ उसको ना अगर कहीं से रोका नहीं गया है, ओके, तो आप कुछ कितना भी हिट करो कोई स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। आंसर विल बी डी, नो स्ट्रेसेस डेवलप। ओके, सो वी हैव टू रजिस्ट, जब रजिस्ट करेंगे तो ही स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके, देखिए स्ट्रेस होता क्या है, ई इंटू एप्सिलॉन। ई देखिए हुक्स लॉ आपने पढ़ा हुआ है ना। ओके, तो ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन होता है। ओके, तो अगर स्ट्रेन ही नहीं है तो स्ट्रेस कहाँ से डेवलप होगा, तो अगर कुछ रजिस्ट नहीं कर रहे हैं, ओके, तो हमारा जो ना इलांगेट होगा ना कॉम्प्रेस होगा, तो कुछ भी नहीं होगा, तो उसमें हमारा कोई फोर्स तो कहाँ से फिर हमारा उसमें स्ट्रेस डेवलप होगा। ओके, सो दिस तो हमें रजिस्ट करना पड़ता है उस चीज़ को। सो इफ यू रजिस्ट टू एक्सपेंड देन ओनली स्ट्रेस विल डेवलप। ओके, तो इट्स आंसर विल बी डी। तो इसको आप याद कर लीजिए कि जब रजिस्ट होगा तो ही ना थर्मल जब उसको इफेक्ट देते हैं तो ही हमारे स्ट्रेस डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इसमें, अ क्यूब हैविंग ईच साइड ऑफ लेंथ e is constant in all directions and is heated uniformly so that the temperature is raised to T degree centigrade. If alpha is the thermal coefficient of expansion of the cube material and E of the modulus of elasticity, the stress developed is in the cube is okay fine। अब देखिए इसको करना, फर्स्ट हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालना होगा। ओके, फिर जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मिल जाएगा उसके बाद जो हमारा स्ट्रेस का जो हमारा डेफिनेशन होता है वहाँ से हमें करके फिर सॉल्व कर लेना है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट इट्स अ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। ओके, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू सिग्मा बाई के। ओके, दिस इज नथिंग बट दिस इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, so this is वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू सिग्मा बाई के, आपने पढ़ा होगा। ओके, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो डेल्टा वी हमारा ये हो गया। ओके, ए क्यू 1 प्लस अल्फा टी होल क्यू एज पर गिवन स्टेटमेंट माइनस ए क्यू बाई ए क्यू। ओके, उसी तरीके से हम पी बाई के इसको भी यहाँ पे रख लेंगे। अब उस हमें क्या बोला, स्ट्रेस डेवलप, इस चीज़ के लिए हमें सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये दिस इज द एंटायर इक्वेशन। okay, so we have to solve for stress। okay, if you simplify this you'll get B। आप इसको करके खुद से देख लीजिएगा। okay, you'll get the answer। next question, consider the following statement, thermal stresses is induced in a component in general when a temperature gradient exists in the component is free from any restraint, it is restrained to expand or contract freely। ओके, सो देखिए थर्मल स्ट्रेसेस के बारे में पूछ रहा है, तो इट्स आंसर विल बी एक्चुअली सी होगा, इट रेस्ट्रेन टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली। ओके, ये फर्स्ट हमारा गलत है, द टेम्परेचर ग्रेडियंट एक्सिस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता। okay, the component is free from any restraint, this is also wrong। okay, so answer is C। next question, a steel rod 10 mm in diameter and 1 meter long is heated from 20 degree centigrade and 120 degree centigrade
E is 200 gigapascal and alpha is this. If rod is free, if the rod is not free to expand, the thermal stress developing is okay. इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है, लेट्स सी, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कि IAS 2003 में आया है, 97 ई इंजीनियरिंग सर्विसेज 97 2000 2006 ऑल्सो ओके। इसका फार्मूला होता है कि आपको थर्मल स्ट्रेसेस का फार्मूला अल्फा ई डेल्टा टी, अगर आपने पढ़ा है इसको, थ्योरी पार्ट पढ़ा है तो आपको पता होगा ओके। जब मैं इसका सोम का थ्योरी कराऊंगा ओके तो ये सारे फार्मूले आएंगे। अभी मैं चूंकि क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो आई कैन नॉट टेल मच अबाउट द थ्योरी पार्ट, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड soon I will come up with the lecture series also, so there I will complete each and everything of a theory part. Okay, so just as of now you just remember alpha, the thermal stress is nothing but is alpha E delta T. So everything is given, so alpha is given, E is given, and temperature delta T is given. Okay, so just put all these value here, you'll get 240 megapascal. Okay, और so it will be compressive as elongation restricted. इसमें देखिए compressive होगा, so its answer is T. Okay, simple question, you just remember this formula. Yeah, next question. A cube with a side length of 1 centimeter is heated uniformly 1 degree centigrade above the room temperature and all the sides are free to expand. What will be the increase in the volume of the cube? The coefficient of thermal expansion is alpha. Okay, so इसका आंसर A होगा, इसको जस्ट आप याद कर लो, three times of coefficient of linear expansion. Okay, so its coefficient of volume expansion gamma is 3 times of linear expansion. आप जिसको याद रखो. Okay, its answer is A. It's 3 alpha. Next question, a bar of copper and steel form a composite system. They are heated to a temperature of 40 degrees centigrade. What type of stress is induced in copper bar? Okay, answer will be B, compressive. Okay, yeah, so I have completed today's video. Okay, next class we will see some more question related to strength of material that will be based on engineering services. Okay, thank you for watching. Bye bye.